Hello everyone and welcome back to my channel. This is a CBSE sample paper for the session 2025-26. ठीक है, क्लास 10th रिटेल का सैम्पल पेपर है ये. तो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर. सैम्पल पेपर का जो पैटर्न है वही आपके बोर्ड का पैटर्न रहेगा. 50 मार्क्स का पेपर होगा थ्योरी का. 2 आवर्स का मैक्सिमम टाइम है एंड दो सेक्शंस है पेपर में, ए एंड बी. 21 क्वेश्चंस इन टोटल, जिसमें से आपको 15 अटेम्प्ट करने हैं. सेक्शन ए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, बी जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है. सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सेक्शन ए. क्वेश्चन फर्स्ट बेटा आपका जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से है. 6 में से 4 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. क्वेश्चन फर्स्ट, election campaigns are the example of public communication. Name any two stress management techniques. तो कोई भी आपकी stress management techniques हो सकती हैं, physical exercise, yoga, meditation, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें. योगा हो गया, मेडिटेशन, नेचर वॉक, एक्सेट्रा. राइट. देन निशा, क्वेश्चन नंबर 3. निशा यूजली अराइव्स लेट टू वर्क. मैं ब्रीफ में एक बारी बता देती हूँ कि निशा नॉर्मली लेट आती है, अपने असाइनमेंट्स भी टाइमली सबमिट नहीं करती और उसका ध्यान किसी और एक्टिविटी में रहता है और अपना मेन काम करना भूल जाती है. तो कौन सी स्किल वो लैक कर रही है? इन ऑप्शंस में से जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है टाइम मैनेजमेंट. फोर्थ में आते हैं, टू मूव एन आइटम यू नीड टू क्लिक इट and then holding the mouse button down, move the item to a new location. After you move the item to the new location, you release the mouse button. तो इसको हम क्या बोलते हैं? Drag and drop. Drag and drop. Okay. Fifth, the money used to start a business is called, it is called as capital. ठीक है. Now, sixth, in SDG, the alphabet S stands for sustainable. क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 6 में से 5 करने हैं आपने. हर क्वेश्चन यहाँ पे भी 1 नंबर का है. ऑटो रिकवरी एंड ऑफलाइन इज पॉसिबल इज कनेक्शन विद सर्वर इज डिस्टर्ब्ड. तो ये आपके मेरे ख्याल से बोर्ड के पेपर में भी सेम यही वाला क्वेश्चन आया हुआ है. सेकेंड, होलसेल बिलिंग कैन ऑल्सो बी सेटल्ड यूजिंग रिटेल बिलिंग सिस्टम. Third, which of the following billing system is famous for retail billing? It is option A. Then fourth, billing accuracy is most important factor for customer satisfaction. Name the feature which allow setting of multiple exchange prices for the same product. So it is support exchange. नाउ 6 आपका मेरे ख्याल से रिपीट हो गया है, 4th वाला ही है, तो इसमें भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. 6 में से अगेन यहाँ 5 करने हैं और इधर भी हर क्वेश्चन 1 नंबर का है. रिलायंस फ्रेश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंगुलर फ्लोर प्लान. देन ISO specified symbol for the first aid kit is white cross on a green background. It is ये वाला है आपका, बी ऑप्शन है, व्हाइट क्रॉस ऑन अ ग्रीन बैकग्राउंड. नाउ थर्ड, फ्री फॉर्म डिजाइन्स. यहाँ पे होगा, free from designs are usually found in small specialty stores and within large stores department. Fourth, retailers use marketing strategy to draw customers into the store and entice them to purchase goods and services. ठीक है, रिटेलर्स क्या करते हैं? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज करके कस्टमर्स को स्टोर में अट्रैक्ट करते हैं कि वो स्टोर में एंटर करें. देन फिफ्थ, इमरजेंसी services should be available 24 hours a day.
Sixth, which method allow good to be purchased by installment? It is EMI. Equated monthly installment से आप करते हो. So the answer is lay by. Right? Fourth में आते हैं, car jewelry are the example of luxury products. Then display of the merchandise play an important role in attracting the customers. Third, who among the following manager would be responsible for merchandising activities for particular lines of merchandise? It is D part, divisional merchandise manager. Okay. Fourth, which of the following is not a factor of merchandising planning? Standardization. Then fifth, it communicate it can communicate style, content and price. So it is, you can say, window displays. Then which of the following element can be used by visual merchandiser in creating display? It is lighting. क्वेश्चन नंबर 5 में 6 में से 5 करने हैं और यहाँ पे भी 1 नंबर का है क्वेश्चन. डिफाइन हाउसकीपिंग. हाउसकीपिंग किसे बोलते हैं? इट रेफर्स टू द सेट ऑफ द एक्टिविटीज दैट आर इंटेंडेड फॉर क्लीनिंग द हाउस by cleaning dirty surfaces, dusting, disposing of rubbish, वैक्यूमिंग एक्सेट्रा. तो वो सारी एक्टिविटीज जिसका मेन पर्पस क्या होता है? हाउस को क्लीन करना, डर्टी सर्फेसेस को क्लीन करना, डस्टिंग करना एक्सेट्रा. तो दैट इज हाउसकीपिंग. Question number 2. In control room, proper surveillance can be done by installing CCTV in a room. In ASO, A stands for assistant. Right? Fourth, the short distance movement of material between two or more points refers to material handling. Then security guards stay at one place and may use electronic surveillance system to monitor people. So it is static security. Will give the full form of IPC. It is Indian Penal Code. Now section B, subjective questions हैं. ये वाला जो है 6 to 10 बेटा, ये वाले questions, all these, ये employability skills में से हैं, 5 में से 3 करने हैं और यहाँ 2 नंबर का है. What is the use of email communication? email communication का use क्या है? कि आप quickly communicate कर सकते हो एक या एक से ज़्यादा लोगों से जो अलग अलग लोकेशन पे हैं. ठीक है, कन्वीनियंस है, लो कॉस्ट है एक्सेट्रा. गिव 4 स्टेप. क्वेश्चन नंबर 7, 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट. तो ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, कंट्रोल, ट्रैक, ये वाले हैं. मैं लिख देती हूँ. ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, control and track. Name any two methods to protect the data from theft and virus. तो आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हो, फायरवॉल, डेटा, यू कैन इनक्रिप्ट डेटा. ठीक है, यू कैन यूज पासवर्ड्स टू लॉग इन टू योर कंप्यूटर. क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट आउट एनी टू क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं वो, पेशेंट होते हैं, काफी पेशेंस होता है उनके अंदर. ठीक है, सक्सेस रातों रात तो नहीं मिलती है. So they have to be very patient. They take responsibility for their actions. Also, they keep on trying new ideas. कुछ भी आप इसमें any two qualities you can write down. Then question number 10, define organic farming. Organic farming वो farming होती है जहाँ पे farmers जो हैं chemicals, pesticides, fertilizers use नहीं करते. तो वो ऑर्गेनिक नेचुरल फर्टिलाइजर्स जैसे काउ डंग है उसको यूज करते हैं टू ग्रो दी क्रॉप्स. ठीक है, सॉइल की क्वालिटी काफी इंप्रूव होती है इससे. नाउ फ्रॉम 11 to 16 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 4 करने हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है. क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन टेलीकॉम बिलिंग. टेलीकॉम बिलिंग क्या है? यहाँ इट्स अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एग्रीगेटिंग इट, अप्लाइंग रिक्वायर्ड यूसेज, रेंटल चार्जिंग and finally generating invoice for the customer. So
अगर इसको हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, टेलीकॉम बिलिंग का क्या होता है कि आप पहले कलेक्ट करते हो कि कितना कस्टमर ने यूज़ किया है, कितना यूसेज रहा है उनका। फिर आप जो भी एक रेट है उसको अप्लाई करोगे उस यूसेज पे, रेंटल चार्जेस कैलकुलेट करोगे और फिर आप कस्टमर के लिए इनवॉइस जनरेट करोगे। ठीक है, सो इट ऑल्सो इंक्लूड रिसीविंग एंड रिकॉर्डिंग पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। क्वेश्चन 12, स्टोर लेआउट एंड डिजाइन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग द स्टोर इमेज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ये आपके लास्ट ईयर बोर्ड पेपर 25 में भी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्टोर लेआउट क्या होता है और डिजाइन कस्टमर को इट टेल्स अ कस्टमर व्हाट द स्टोर इज ऑल अबाउट। स्टोर का लेआउट देख के ही कस्टमर को पता लग जाता है कि स्टोर में स्टोर कैसा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर लेआउट अच्छा है तो स्टोर की अच्छी इमेज क्रिएट होगी कस्टमर के माइंड में। और प्रॉपरली इसमें स्टोर लेआउट के थ्रू ही कौन कौन से यूनिट्स कहाँ पर हैं, उनकी लोकेशन क्या है, तो कस्टमर को इजी हो जाता है शॉपिंग करने में। राइट, तो आप ये सब लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राइट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ एंगुलर फ्लोर प्लान। सो इट इज नॉट वेरी एस्थेटिक, बहुत क्लमजी लगता है, इट लुक्स क्लमजी। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हो, द वेरी प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्सिव सेलिंग इज नॉट सर्व। सो इम्पल्सिव सेलिंग नहीं होती है, is not served. Now question number 14. Why merchandise planning is useful to the organizer? So क्यों यूजफुल है? क्योंकि कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, सेल्स बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस रिड्यूस होते हैं। ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, गिव स्टेप्स टू डिटरमिन राइट असॉर्टमेंट ऑफ मर्चेंडाइज। सो पहले आप टारगेट मार्केट असेस करिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, डेटा को एनालाइज करिए, डिटरमिन ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ मर्चेंडाइज ऑफरिंग। ये सारे स्टेप्स हैं। और यही वाला क्वेश्चन भी लास्ट ईयर बोर्ड 2025 में पूछा हुआ है। नाउ नेम एनी 4 हाउसकीपिंग टास्क। सो पेंटिंग, वीडिंग, मेंटेनेंस, ये सारे जो है वो आप लिख सकते हैं। राइट, वैक्यूम क्लीनिंग, एक्सेट्रा। नाउ 5 में से 3 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है रिटेल ट्रांसपोर्टेशन का कि कस्टमर को गुड्स शॉर्ट टाइम पे डिलीवर हो, कॉस्ट कम हो, अनलोडिंग अनलोडिंग रिड्यूस हो। ठीक है, टू रिड्यूस लोडिंग एंड अनलोडिंग एज मच एज पॉसिबल, सेफ्टी मेजर्स इंप्रूव होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। एंड जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसको फॉलो करना। नाउ क्वेश्चन 18, लिस्ट आउट द स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग अ स्टोर लेआउट। तो आपको पहले इसमें स्टेप्स क्या हैं देखना है कि कितना स्पेस अवेलेबल है और कितना सेलिंग और कितना नॉन सेलिंग एरिया को स्पेस चाहिए। सेलिंग एरिया के लिए कितनी स्पेस चाहिए, नॉन सेलिंग एरिया के लिए कितनी स्पेस चाहिए। फिर देन यू हैव टू फिट द स्पेस नीड फॉर गुड कस्टमर फ्लो, कि कस्टमर इजिली मूव कर सके, वो भी आपको देखना है। और provision for self service. So these are the steps. Now question 19, a merchandiser is responsible for particular lines of merchandise. Example, एक departmental store में there may be merchandiser for men's wear, women's wear, children's wear. The basic duty of merchandiser can be divided into how many areas? आपको ड्यूटीज बतानी है मर्चेंडाइजर की कि they can be divided basically into 4 areas बेटा। प्लानिंग, वो एक्सप्लेन करना है, तो मैं तो सिर्फ अभी हेडिंग लिख रही हूँ। डिटेल वीडियो में मैं ये सारा करवा चुकी हूँ। आप यू कैन गो एंड वॉच द डिटेल वीडियोस। कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट। नाउ क्वेश्चन 20, okay, explain 4 types of consumer products which can be purchased by the ultimate users. तो आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं
स्टेपल, इम्पल्स, इमरजेंसी, कन्वीनियंट, लग्जरी, कंफर्ट्स, तो आप वो सारे एक्सप्लेन कर सकते हो। स्टेपल, इम्पल्स, इमरजेंसी, कन्वीनियंट, लग्जरी, एक्सेट्रा, कुछ भी आप लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 21. Mr. Ratan is an owner of a departmental store and in his area shoplifting incidents are increasing day by day. So he planned to appoint a security guard. According to you, what eligibility criteria should be followed by him while appointing a security guard? So a person shall be employment for eligible for employment as a security guard agar if he fulfill the standard of physical fitness which are specified in this act, PSARA Act 2005। ये भी डिटेल वीडियो में मैंने बताया। तो स्पेसिफिकेशन होती है हाइट की, आई साइट की, ठीक है, और के वेदर ही कैन रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश अल्फाबेट एंड ही शुड बी फ्री फ्रॉम फ्लैट फुट, हियरिंग, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, हियरिंग, ये सारी गाइडलाइंस दी होती है, राइट। कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा। सो दिस इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर पेपर। I will be coming up with more sample paper. Till then, stay tuned to my channel. ओके तो अब आपको ये जो पेपर मैंने अभी डिस्कस किया बेटा, आपको इसी तरह बाकी पेपर्स भी अगर आप डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आई एम प्रिटी श्योर दैट यू विल बी एबल टू फेच गुड मार्क्स इन द पेपर। सो 1 मार्कर जो है आपके पास काफ़ी सारी चॉइस है, राइट। एंड 1 मार्कर आपको जब भी आप करें तो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आपको पूरा क्वेश्चन नंबर लिखना है और क्वेश्चन नंबर के बाद आपको वो पार्ट लिखना है, और पार्ट जैसे ए पार्ट है, एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट द फुल आंसर। दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट व्हेन यू अटेम्प्ट द पेपर। तो आपका पेपर जो है एक पर्टिकुलर, अगर आप सेक्शन ए कर रहे हैं तो माय एडवाइस विल बी दैट फर्स्ट यू कंप्लीट सेक्शन ए ऑल टुगेदर, और उसके बाद आप फिर सेक्शन बी पे आइए। ऐसा ना हो कि पेपर में आप पहले सेक्शन ए के कर रहे हैं, राइट, और फिर आप सेक्शन बी के कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।